channel Diva Diaries and welcome to yet another long format video. It's been so many days I have said this intro because literally I have been missing from the internet, like at least from my own YouTube channel. I have not been filming content, absolutely no content, but by the way we will talk about that later and in this today's video, because today I am going to finally give y'all the much needed, the yearly ritual life update. Drum rolls. Because also, if you guys are new on my channel, you're not aware, every year I do a life update video twice. एक मैं जून में करती हूँ और एक मैं दिसंबर में करती हूँ. So 6 months का life update I do, where I sit, I share like a simple makeup look, and while doing my makeup I talk about everything that has happened in the past 6 months. जो last life update video था वो obviously दिसंबर में मैंने किया था. You should check that out, because if you see that, you will get a context as to how my 2024 was and now how is half of 2025 been. I have so much to tell y'all, so much to tell y'all. Like, I'm going to be talking everything. Also, I'm going to do a very simple, nice college look kind of a makeup, very simple and easy, which is also appropriate for monsoon. मैं खुद अभी कॉलेज से आई हूँ. It's 6:40. This is the real time. It's 6:40 right now. मैं खुद कॉलेज से आई हूँ चर्चगेट से. I am tired, but I am all excited to film this video because of course there are timelines. मुझे वीडियो डालनी ही है before June ends, and also I really want to sit and talk to you guys. It's been such a long time. Finally मेरे को अभी थोड़ा बहुत अगर ये weekend मिला है, I want to get this video done. So without any further delay, let's jump straight into this. I have the pointers written over here in the phone, वरना मेरे को याद नहीं रहेगा यार, बहुत कुछ होता है. And by the way, this is my dad's phone. My phone is being used for shooting purposes. वरना आप लोग को लगेगा कि मेरे पास iPhone आ गया. नहीं, अभी टाइम है. So this is dad's phone. So I have my points here. We're going to do this, and also let's begin with the makeup. I've done my skin prep, so let's start. Now, firstly, I'm going to talk about the beginning of 2025. How it began, how it ended. You all know that. How it began. It began on a beautiful note. Okay. This year, New Year was very pretty because it was my first New Year in the new house. The fireworks from here are so damn pretty. बहुत मज़ा आया. We stayed up. We also played these New Year games. Okay. And Bollywood quiz. And घर पे मतलब मेरे mom dad के साथ. It was like a fun time, and I was enjoying it because it was the लास्ट फ्यू डेज ऑफ माई छुट्टियाँ. राइट, क्रिसमस की छुट्टियाँ ख़त्म ही होने वाली थी बस. तो बस थोड़ा बहुत हमने मज़े किए. एंड देन 1st of Jan itself for me was a working day. So generally what I do is every year 25th December से 1st January is my leave. मतलब स्कूल की बात नहीं कर रही हूँ मैं, 9th-10th की बात कर रही हूँ. पहले बचपन में तो छुट्टी मिलती थी, बट सिंस 9th, 10th, 11th आई हैव बीन डूइंग दिस थिंग वेयर 25th December to 1st Jan इज़ माई छुट्टी. मैं उस पीरियड में कुछ भी नहीं करती हूँ. एब्सोल्युटली नो स्टडीज़ और एनीथिंग. मतलब इट्स जस्ट माई रिलैक्सेशन टाइम. दिस टाइम आई वॉज वर्किंग अप टिल 30th December, like because somehow my portion was not getting over, but 11th standard ख़त्म होने आ रहा था. तो आई हैड टू कवर अप द पोर्शन, एंड द ओनली टाइम दैट आई गॉट वॉज क्रिसमस की छुट्टियाँ, बिकॉज उसके पहले कॉलेज था, उसके बाद क्लास और कॉलेज था. सो एवरीथिंग वाज गेटिंग जम्बल्ड अप. सो आई वाज सिटिंग एंड ट्राइंग टू फिनिश माई पोर्शन इन द क्रिसमस ब्रेक. 31st December आई गेव माई सेल्फ अ हॉलीडे, बोल के कि यार एक दिन तो मैं डिजर्व करती हूँ. बट 1st Jan, जनरली 31st December एंड 1st Jan सबसे मस्ती भरा दिन, बट मेरे लिए 1st Jan वॉज वेरी हेक्टिक. आई स्टार्टेड द ईयर ऑन अ वेरी हेक्टिक नोट, विच लिटरली मीन्स कि पूरा साल ही उतना हेक्टिक होने वाला है. एंड आई विल गिव यू ऑल रीजन्स फॉर दैट. मैं आप लोग को बताऊँगी आगे, आप लोग पता चलेगा. सो 2nd Jan से मेरे एग्जाम स्टार्ट होने वाले थे कॉलेज में. सो नो चांस. और उसमें भी 2nd Jan को मैथ्स का पेपर था. तो 1st Jan तो मतलब क्रेजी था. मैंने पूरा दिन बस काम ही किया. एंड 2nd Jan से एग्जाम स्टार्ट हो गए. बट इट स्टार्टेड अ वेरी गुड नोट. लाइक आई एन्जॉयड. That was how it began. Also, in context, you guys, this is going to be a very long episode. I have so much to talk, और एकदम chill होके आराम से बैठ के सब कुछ शेयर करने वाली हूँ in detail. So if you guys want, just watch the video in 1.5x and treat this like a Netflix episode. तो आराम से अपना खाना वाना लेके बैठ जाओ
हम इसको मस्त डिटेल में करने वाले हैं, बिकॉज यार 6 महीने का इतने छोटे वीडियो में बताना इज इम्पॉसिबल, तो वीडियो तो खींचेगा. That was that. And then January overall I think was really fun. I had so much going on in, so Jan, Feb, March particularly I had a lot going on. It was the end of my term, तो बहुत कुछ हो रहा था. एक एक करके मैं बताऊंगी आप लोगों को. तो जैन में सबसे पहले आई हैड 2 or 3 कॉलेज इवेंट्स, मैंने वो किया. देन वी हैड आवर फैमिली गेट टुगेदर्स, तो वी हैड गॉन द वॉट एवर आई एम सेइंग ना, द गुड थिंग्स आर ऑल अप ऑन माई चैनल. शुड डेफिनेटली सी द ब्लॉग, इट्स रियली फन. And then we had mummy ka birthday. So these 3 things were like particularly highlights of January. And oh my god, mummy ka birthday is going to be something that I'll remember even at the end of 2025, because it was epic. Okay, it was my mom's 40th birthday, so we did it really grand, and we went for this luxury dining experience in Radisson. And come on guys, okay, पहली बार था हमारा. So for anyone, if it's a first timer, उनको बहुत एक्साइटमेंट होती है. And I was so excited, like मुझे समझ में नहीं आता मम्मी का बर्थडे है कि मेरा बर्थडे. मैं उतनी खुश हो रही थी. It's a beautiful experience. मम्मी का बर्थडे बहुत अच्छे से मना. कॉलेज में भी सब चिल जा रहा था, लेकिन द फर्स्ट वीक ऑफ जैन आई हैड माई एग्जाम्स यार. उसके बाद तो मतलब बहुत ही फ्री थे हम, लेक्चर्स नहीं हो रहे थे, एंड वी वर चिलिंग. नाउ मूविंग अहेड टू February, अनदर highlight of this year is going to be the month of February, because if you guys follow my vlogs, I went to Sri Lanka. And now okay, so that was a very very big surprise, and I am saying that with a purpose, is because हम एक तो इंटरनेशनल ट्रिप जो जून में करके आए थे, जून 2024. इट वॉज सो अनएक्सपेक्टेड कि हम फरवरी में एक और इंटरनेशनल ट्रिप पे जा रहे थे. माइंड मी, आई एम टेकिंग माई ब्रशेज आउट. सो आई वॉज सुपर एक्साइटेड, और मुझे कोई खबर नहीं है मेरे पेरेंट्स ये सब प्लान कर रहे हैं. हम कहीं जाने वाले थे दिसंबर में, बट वी डिड नॉट गो ड्यू टू सम रीजंस, एंड आई वाज नॉट टोल्ड द रीजंस. तो मेरे को लगा कि जाने दो, चलो यू नो बिजी होंगे. माई डैड ऑल्सो हैड अ लॉट ऑफ वर्क इन हिज ऑफिस, एंड आई वाज नॉट कंप्लेनिंग बिकॉज मेरे पास खुद के पास काम था. सो श्रीलंका केम टू मी एज अ वेरी बिग सरप्राइज, एंड इट वॉज द लास्ट छुट्टी दैट आई हैड. Okay, the spoiler alert I am giving, Sri Lanka was my last chutki. Okay, so I thoroughly enjoyed Sri Lanka. It was beautiful. That is like, there's nothing honestly I can complain about. International trips is something that I really love from the beginning of it. ठीक है, जो शुरुआत हुई उसकी, जहाँ पे हमने वो राम सेतु देखा था, oh my god, that itself was like the most beautiful start one can even think of. एंड देन आफ्टर दैट, तो जितना बैंगर शुरू हुआ उतना ही बैंगर ख़त्म भी हुआ. वी हैड आवर लास्ट नाइट स्टे इन रैडिसन, श्रीलंका. इट वाज सच अ ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी. और उन सब के बीच में ओवरऑल श्रीलंका की आउटिंग, उनका टूरिंग एक्सपीरियंस, आगे देखने की टूरिस्टी चीज़ें बहुत अच्छी हैं. हैव रियल ब्यूटी, लाइक बाली का कैसे नेचुरल ब्यूटी है, वैसे श्रीलंका का भी नेचुरल ब्यूटी है यू मस्ट सी. एंड नुवारा एलिया इज़ a beautiful place. Like it's tough to get there, but it is a must see. like जाना ही चाहिए आपको, वहाँ पे बहुत सुंदर जगह है. एंड उसके अलावा श्रीलंका जाने का इंडियंस का मोटिवेशन डेफिनेटली ये है, बिकॉज वहाँ की जो हिस्ट्री है वो इंडिया की हिस्ट्री से कनेक्टेड है. एवरी सिंगल थिंग, मतलब एवरी स्पिरिचुअल थिंग देयर इज कनेक्टेड टू रामायण. एंड इफ़ यू आर इनटू माइथोलॉजी, यू आर गोइंग टू love that place. Like मुझे तो इतना अच्छा लग रहा था. I got to know so many stories, so many facts, so much of Ramayana that has happened in real life. A part of Ramayana has happened in India that we know, but there is still a part of Ramayana which Indians are not aware, but the Sri Lankans are, because वो उनके यहाँ पे हुआ था. So that's the beauty of it. Now I've just added this white color on the base, and I'm taking this brown shade for just थोड़ा सा ऐसे ombre करने के लिए बस. श्रीलंका बहुत अच्छा था, और वो मेरा एक ब्रेक जैसा था. आई डिड नॉट इवन नीड दैट, आई वाज ऑलरेडी एन्जॉइंग माई डेज, बट बहुत ही अच्छा सरप्राइज था वो. एंड देन आई हैड माई कॉलेज फाइनल एग्जाम्स ऑफ 11th स्टैंडर्ड. तो मैंने वो दे दिया. आई हैड ऑलरेडी प्रेप्ड फॉर इट इन डिसम्बर, तो मैं रेडी थी. मतलब एंड मोमेंट कुछ नहीं हुआ. इनफैक्ट मैंने मार्च में बहुत मस्ती की. मूविंग ऑन टू मार्च,
सो ऑफकोर्स आई हैड माई एंड ऑफ FYJC, जो धमाकेदार सेलिब्रेशन हुई है एक हफ्ते की. आई वेंट आउट विथ माई फ्रेंड्स, आई वेंट आउट ऑन सोबो आउटिंग, आई ट्राइड वहाँ का सारा फूड. लाइक माई हाईलाइट वॉज पंचमपुरी वाला, ऑनेस्टली वो मुझे ट्राई करना था. एंड दैट आई एट ऑन द लास्ट डे ऑफ माई कॉलेज एज अ सेलिब्रेशन. तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया मुझे, बहुत मज़े किए हम लोग ने, फ्रेंड्स ने और सब ने. वी काउंटेड मेमोरीज एंड बहुत सारा मतलब मस्ती किया. लेक्चर्स तो थे ही नहीं, एग्ज़ाम तो शुरू हुई और ख़त्म भी हो गई. मतलब कुछ समझ में ही नहीं आया, हम लोग का ध्यान था ही नहीं एग्ज़ाम में. हमारा सारा ध्यान इसमें ही था कि हम कहाँ जा रहे हैं, कब जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो कर रहे हैं वैसे. तो दैट वाज फन. एंड देन ऑल्सो होली थी मार्च में. मेरे इस नए बिल्डिंग में मेरी पहली होली है. लेट मी टेल यू, देयर आर दीज 1-2 फंक्शंस राइट, जो यहाँ पे बहुत ग्रैंड होते हैं. सारे फंक्शन सेलिब्रेट करते हैं, बट ग्रैंड के स्केल पे यहाँ पे 2-3 फंक्शंस होते हैं. एंड वन ऑफ देम इज़ होली. वी सेलिब्रेट होली एंड रियली बिग ग्रैंडियोर. सो बहुत मज़ा आया. मतलब मुझे तो होली में, ऐसी होली मैंने कभी नहीं देखी, माइंड यू. सो दैट वॉज दैट. एंड देन आई जस्ट एंजॉय. लाइक घर पे बैठी थी, फ़ोन देख रही थी. आई फिल्ड अ लॉट ऑफ कॉन्टेंट, हाउ मच एवर आई कुड फ्रॉम माई एंड. मैंने सब कुछ किया बिकॉज बस बहुत ज़्यादा टाइम था और कुछ नहीं. मतलब आई वाज वाचिंग फोन, आई वाज वाचिंग टीवी, मूवी देख रही थी. आई वाज स्पेंडिंग टाइम विद माई मम्मी पापा. बस यार कुछ है ही नहीं करने के लिए. एंड देन आफ्टर दैट वी ऑल्सो कम्प्लीटेड 1 year इन आवर न्यू होम. दैट वाज अ वेरी आई वोंट से इमोशनल बट अ वेरी टचिंग मोमेंट कि मुझे समझ में नहीं आया यार इस नए घर में 1 साल हो गया है. entire 2024, या चलो 3/4 of 2024 we struggled in settling in this new home, not because the home gave us tras, but because our routine could not adjust to settling in this home. By the way, I am skipping on eyeliner because it's a very simple look. I'm directly going to jump on to mascara and apply a bit of kajal. पूरा 2024 घर सेटल करने में चला गया. एंड देखते ही देखते 1 साल हो गया. एंड नाउ इट फील्स अपना. नाउ इट लिटरली फील्स अपना. आई फील लाइक अरे हाँ मैं तो यही रहती हूँ. वैसे आई मिस माई फॉर्मर होम. ऑफकोर्स कौन मिस नहीं करता है, बिकॉज आई लिव्ड देयर फॉर 15 years ऑफ माई लाइफ एज आई ऑलवेज से. तो मैं भूल ही नहीं सकती ना. इट वॉज द होम वेयर आई वॉज बॉर्न. दैट आई कैनॉट फॉरगेट. बट this is apna now. That's the kind of feeling. So we celebrated that. And then comes then comes the situation that changed everything for me. So मेरे 12th के classes start होने वाले थे on 12th of April. It got postponed to 17th of April out of nowhere. And I did not expect that. सबके classes start हो गए थे और मेरा शुरू ही नहीं रहा था. And they had no reasons for that. They were just like नहीं 12th नहीं होगा, 17th से होगा. It was a bit sus, but then I ignored because मुझे तो ज़्यादा दिन मिल रहा है ना छुट्टी का, तो मैंने उसको इग्नोर किया. By the way, this is an entirely storytelling time, not there on my vlogs. So if you guys do not want to listen to this just one story, you can just skip this. But very important part of my first half of 2025. You should definitely listen to this if you have switched on this life update video. 17 April it started and पहले मैं 11th में जिस क्लास में जाती थी, इस साल मैंने वो क्लास नहीं लिया है बिकॉज आई एम परस्यूइंग अ डिग्री, जिसके लिए मुझे एक प्रोफेशनल कोचिंग इंस्टीट्यूट चाहिए था. सो वेयर आई लिव वहाँ से 2-3 स्टेशन दूर था ये क्लासेस. बट आई अग्रीड टू इट बिकॉज जितना मैंने रिसर्च किया था, मेरे रेसिडेंशियल एरिया के आसपास मेरे लिए कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट था नहीं फॉर दैट पर्टिकुलर डिग्री. तो मैंने 2 स्टेशन दूर लिया था अपना वो क्लास. इसीलिए अगर आप लोग देखोगे अप्रैल के फोटोज़ में देयर आर फोटोज़ ऑफ द मेट्रो. I did not provide a reason there because I was not in the state of talking and I was like जाने तो जब लाइव अपडेट करेंगे तब बता दूँगी. तो मेट्रो इसीलिए था बिकॉज मेरे क्लासेस जो है वो मेरे घर से दूर है. सो एवरी डे इन द मॉर्निंग एट 6:20 आई हैड टू टेक अ मेट्रो विच इज़ रिडिक्युलस. बट आई हैड अग्रीड कि भाई अभी अब से ऐसा ही होगा बिकॉज डिग्री परस्यू करनी है तो ये सब मेहनत तो करनी पड़ेगी. ठीक है. 1 week happened and I was just trying to get used to that routine. बहुत तकलीफ हो रहा था मुझे बिकॉज मेरा पहले वाला क्लास was literally a road crossing वाला. मेरे घर से जब रोड क्रॉस करने पे मेरा दूसरा क्लास आ जाता, मतलब मेरा क्लास आ जाता था. और अभी ये 12th वाला जो क्लास था
वो 2 स्टेशन दूर था. It was difficult. Like it was difficult. I was trying to convince myself कि नहीं यार आदत हो जाएगी, नहीं यार आदत हो जाएगी. And then 1 week later something happened that, like, even when I think about it today, it gives me a traumatic feeling. And like I can see that day, those scenes so vividly in my mind. उन्होंने हमें आउट ऑफ नोवेयर ये न्यूज़ दे दी कि जो क्लासेस मैंने ज्वाइन किया है, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट मैंने ज्वाइन किया है, उनके जो सब पार्टनर्स हैं वो लोग अब हमारा क्लास चलाने वाले हैं. सो इट्स लाइक आई हैव साइंड अप विद अ कोचिंग इंस्टीट्यूट, बट their teachers will not be teaching us. Some other institute ke teachers will teach us in the name of our class. Now I don't think you all need to get into any technicalities. आप बस इतना समझो कि as a consumer धोखा हुआ है, किसी और नाम के प्रोडक्ट, किसी और नाम के ब्रांड पे कोई और प्रोडक्ट बिक रहा है. That is like in simple words I can say, because I don't want to reveal the name, I don't want to reveal any details, I don't want to do that. बट आप लोग को समझेगा नहीं अगर मैं बोलूँ, कोई भी कॉन्टेक्स्ट में नहीं बोलूँ. तो इट्स सिंपल एज इफ लुई विटॉन का ब्रांड है और उसके नीचे मुझे कुछ भी ले लो, मतलब ये एस्पेडा का पर्स दे दिया है, वैसे दैट्स द काइंड ऑफ थिंग दैट हैपेंड. एंड ऑल ऑफ अ सडन विथ नो जस्टिफिकेशन, नो रीजनिंग, दे आर नॉट रेडी टू लिसन टू द स्टूडेंट्स. एंड इन दैट प्रोसेस दे हैव आस्क्ड अस टू चेंज आवर लोकेशन, to change our books, to change our way of studies, to change our class, to change our group, everything. Like in that one day, everything changed. I cried, I fumed, I just complained. मैं घर आके बोला अपने पेरेंट्स को कि उन्होंने बिना इन्फॉर्म किए ऐसा ऐसा किया है. My parents complained to the committee, like the board. What is this? हमने जिस क्लास में डाला था वो तो चल नहीं रहा है, कुछ और ही बिजनेस चल रहा है. सो दे सेड कि नहीं, ये जो दूसरे लोग हैं वो हमारे पार्टनर्स हैं. बट आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड. देन द न्यू टीचर्स दैट स्टार्टेड, एंड आई डिड नॉट इवन हैव अ डे टू थिंक. लाइक संडे दे gave us this news and Monday से they expected us to come to their classes, new location, new people. I just couldn't think of what to do, but my parents were like, तू जा अभी के लिए वरना तेरा पोर्शन मिस हो जाएगा. तो I started going, and what an experience. Oh my god, that was the worst. डब्बे जैसा साइज़ का क्लास. इट वॉज फार अवे फ्रॉम द मेट्रो. माई प्रीवियस, मतलब जो इसके पहले जो एक्चुअली वो एक हफ्ते के लिए जो मैं लोकेशन में जा रही थी ना, वो मेट्रो से काफ़ी नज़दीक था. ये वाला दूर निकला. एंड सम वेरी वियर्ड क्लासमेट्स, वेरी वियर्ड पीपल हु आई डोंट थिंक लाइक उनको ज़रा सा भी दिमाग था. दे वर एक्टिंग सो वियर्ड. इवन द वॉशरूम, आई कुडंट फाइंड द वॉशरूम इन द फर्स्ट डे. एंड द टीचर्स, दे वर नॉट प्रोफेशनल्स. लाइक आई वोंट से कि वो अच्छा नहीं पढ़ा रहे थे, बट एवरी टीचर हैड सम और दी अदर प्रॉब्लम्स. एंड एक तो सर थे भाई, वो तो एकदम ही वियर्ड थे. एंड आई डोंट नो व्हाट वाज ही एक्सपेक्टिंग एंड व्हाट डिड ही थिंक कि हम 17 साल के हैं, सो ही कैन क्रैक सच जोक्स विच इज़ सो इनअप्रोप्रिएट. बट आई वाज स्टिल फाइन विद इट बिकॉज पढ़ा रहे थे अच्छा. सब कुछ थोड़ा वियर्ड था बट ढंग का पढ़ा रहे थे. आई वॉज नॉट हैविंग अ प्रॉब्लम विद दैट, बट आई वॉज अपसेट द एंटायर टाइम. घर आके मैं थक जाती थी. आई डिड नॉट टॉक विद एनीवन. मैं मम्मी पापा से ज़्यादा बात नहीं करती थी, अकेले अकेले रहती थी, बिकॉज आई वॉज नॉट कंटेंट विथ हाउ लाइफ वॉज गोइंग ऑन. एंड ये सब कुछ चल रहा है टिल एंड ऑफ अप्रैल. ओके, वॉट एवर दिस हैज़ हैपेंड इज हैपनिंग बिटवीन 27th April to 5th May, somewhat like that. Then somewhere around 6th में ये अभी क्लासेस वाले फिर से हमें बोलते हैं कि अब से आपके इवनिंग बैचेस शुरू हो जाएंगे. आई एम लाइक व्हाट? क्योंकि व्हेन आई साइंड अप फॉर 12th standard दे सेड कि आपके क्लासेस मॉर्निंग में होंगे. एंड नाउ ही इज एक्सपेक्टिंग अस टू कम इन द इवनिंग. आई टोल्ड हिम, लिसन, आई लिव 2 stations away from here. It is impossible for me to come in the evenings. So he's like, we can't help. You are pursuing a degree, so it's your responsibility to show up. Okay, 2 minutes silence for that. He absolutely had no care, no attention. कोई परवाह नहीं थी उसको बच्चे की सेफ्टी की. And I'm not even saying about safety, but can you even imagine how life would have been अगर वो continue होता तो.
सो आई वॉज जस्ट मी एंड माई पेरेंट्स वर जस्ट इवेल्युएटिंग कि क्या करे दूसरे क्लासेस में शिफ्ट करे क्या, बिकॉज नाउ इट वॉज गेटिंग अनबेरेबल. इतना तक मैं टॉलरेट कर रही थी, बट आफ्टर दिस लाइक आई वॉज जस्ट लूजिंग माई माइंड. नहीं, मेरे को नहीं करना है, आई जस्ट डोंट वांट टू डू इट. वी वर जस्ट थिंकिंग कि क्या करना है. एंड देन आई थिंक 8th of May, सी आई माइट बी रॉन्ग विथ माई डेट्स, बट उन्हीं दिनों के आजू बाजू है 8th May को. अगेन दिस इज़ अ वेरी डिटेल्ड स्टोरी, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट मच डिटेल बिकॉज मैं आप लोगों को कुछ भी पर्सनली रिवील नहीं करना चाहती. एक वाया कनेक्शन से आई गॉट टू नो दैट द प्रीवियस क्लास दैट आई हैड जॉइंड, उनका एक ब्रांच मेरी लोकेलिटी में भी है. एंड आई had not researched about that branch properly. You can just assume that like there are just too many details to that story also, but ignore. बस आप लोग को इतना समझो कि मुझे किसी कनेक्शन से अपने ही लोकेलिटी में एक ब्रांच मिल गया. मैंने पता कराया वहाँ पे, दे हैड अ सीट एंड विद इन 2 days भी नहीं पर है ना हाफ डे, आई गॉट माई एडमिशन यहीं के ब्रांच में. लाइक I don't know what to say. That day also I cried. But that day when I was crying, I had a smile यहाँ से लेके यहाँ तक. I was so astonished by God's miracle. Like if He puts you into trouble, He gets you out of. That was मतलब मेरा वो था उस दिन. I was the happiest. Okay. एंड या आई मीन उसके बाद ही पूरा मैटर सेटल हो गया. कैन यू बिलीव वो फॉर्मल क्लास में मैं 10-15 दिन कोशिश किया, फिर भी मैं सेटल नहीं हो पा रही थी. और यहाँ पे विद इन 1.5 day पूरा मैटर सॉर्ट हो गया. आई मीन इट वॉज मेंट फॉर मी, बट आई डोंट नो वाई दिस एंटायर फियास्को हैपेंड इन द फर्स्ट प्लेस. बहुत तकलीफ हुई, बहुत कुछ सीखने को भी मिला ऑनेस्टली. लाइक if there's one thing that this entire experience taught me was be grateful. Like be grateful for the tiniest of things in life, because you never know कि आज शाम तक सब कुछ ठीक जा रहा है, तुम सो रहे हो और अगले दिन सुबह your life will change completely. Like that Saturday evening I was very happy because अरे मेरे को एडजस्ट हो रहा है, आई एम गेटिंग यूज्ड टू दिस रूटीन. एंड अगले ही दिन संडे को दिस हैपेंड. तो रात मेरी सिचुएशन बदल गई. आई जस्ट थॉट मी अ लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड एंड आई एम दिस थिंग विल रिमेन विथ मी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, नॉट जस्ट टिल द एंड ऑफ 2025. बट मुझे हमेशा याद रहेगा अ स्टोरी दैट आई कैन टेल माई चाइल्ड के यार मेरे साथ ऐसा हुआ था. आई नो फॉर सम पीपल दिस माइट नॉट बी अ वेरी बिग थिंग. इट्स जस्ट छोटे बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं ना लाइफ के, लाइक एडल्टिंग के छोटे छोटे प्रॉब्लम्स होते हैं कि अरे ये हो गया वो हो गया, फिर थोड़ा इधर उधर एडजस्टमेंट करना पड़ा और बैठ गया बस. आई गेट इट, बट someone like me, it has never happened to me in life. Okay, so till 9th 10th I was in the school environment. मेरा जो क्लास था ना वो भी मेरे स्कूल से कनेक्टेड था, तो it was only around my people. 11th में I shifted over here. There was a change, but everything was under comfort. फिर यहाँ पे जो हुआ that was beyond my imagination. But yeah, it will be there. There is nothing good that came out of this except for the learnings. बहुत कुछ सीखने को मिला. How to travel independently, how to be safe, how to not be afraid, how to react in impulsive situations, how to not give up, and to be very grateful. Like this is a kind of video I make in the end of the year where I do this video saying lessons I learned in this years. Last year मैंने किया था lessons in 2024. वैसे मैं ये करती हूँ and उसमें definitely cover points where I have learned something in that particular year. तो ये definitely आएगा. So this entire thing that happened between 17th April to 10th May. 10th May से मैंने यहाँ पे join किया and since then life has been smooth. But life as 12th graders started. So I got so busy with my studies because वहाँ पे पहले हुआ फिर यहाँ पे हुआ, उन सब के चक्कर में I missed on a lot of portion. तो मुझे बहुत cover up करना पड़ा and literally the entire of May went into doing that. And then comes 24th May. Now if you guys know me, मेरा birthday आता है 24th को. So that 1 week was not a छुट्टी. 22nd May to 22nd May to 31st May was छुट्टी.
बिकॉज 24 मई तक मुझे क्लासेस थे और 25 से मुझे छुट्टी था. दिस वॉज माई फर्स्ट बर्थडे वेर आई वॉज वर्किंग. अगेन वेरी डिफ़िकल्ट फैक्ट टू एक्सेप्ट यार. मतलब ये सब मैं ना इतना बड़ा चढ़ा के इसके लिए बोल रही हूँ बिकॉज अप टिल सो मैनी ईयर्स आई हैव लिव्ड इन कम्फर्ट. सो ऑल ऑफ दीज लिटिल थिंग्स आर आउट ऑफ माई कम्फर्ट जोन. तो लगता है थोड़ा अलग. अभी अलग नहीं लगता. नाउ इफ़ यू आस्क मी, उस दिन 24 मई को अलग लग रहा था, आज अलग नहीं लग रहा है. अभी तो मतलब मेरे संडेज भी वर्किंग हो गए हैं, तो मुझे बिल्कुल भी ब्रेक ही नहीं मिलता है. एंड इट्स फाइन. सो इट वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल 17th बर्थडे. मेरे अंदर की फीलिंग्स मुझे खुश नहीं रहने दे रही थी. एंड दिस हैपन्स विद मी एवरी बर्थडे. अप टिल 23rd मई आई एम ऑलवेज एक्साइटेड. एंड 24th मई को मेरा मूड धस जाता है पूरा, बिकॉज मुझे एक सडन रियलाइजेशन हो जाता है कि इतने ईयर्स बीत गए लाइफ में, क्या अचीव किया. दिस इज़ टू फिलोसॉफिक. आई डोंट थिंक दैट वे, बट इट हिट्स मी. माई एज हिट्स मी सेइंग कि ओके यार 17 हो गया. लाइक आई एम जस्ट 1 year अवे. अभी तो जस्ट फ्यू मंथ्स अवे फ्रॉम टर्निंग इन टू एन एडल्ट. सो बहुत कुछ चीज़ें हिट करती है यार मुझे उस दिन. अभी नहीं आएगा. नाउ आई व्हेन आई थिंक अबाउट इट, इट्स द बेस्ट डे. माई बर्थडे इज़ द बेस्ट डे. बट वो पर्टिकुलर दिन मेरा सच्ची मूड धस जाता है. डू टेल मी इन द कमेंट्स हाउ मेनी ऑफ यू गाइज रिलेट विथ दिस. बाय द वे, आई एम डन विथ माई बेस. मैंने ब्लश लगाया, कॉन्टोर किया है, नो फाउंडेशन, ओनली पाउडर से सेट. आईज पे वो ऑम्ब्रे किया, मस्कारा लगाया, थोड़ा सा यहाँ पे बाहर के कॉर्नर में काजल लगाया. दैट्स इट. अभी लिपस्टिक लगाना बाकी है, बट थोड़ी अभी और बातें करते हैं. एंड सो द डे वेंट वेल दो. ठीक है, बहुत मज़ा आया. मेरे पेरेंट्स सब कुछ मेरे लिए बहुत स्पेशल करने की कोशिश की. ऑल्दो मेरे को सुबह मेरा बिजी था, पर उसके बाद तो कुछ बहुत स्पेशल हुआ. मस्त हम लोग डिनर आउटिंग पे गए ना, वेरी फैंसी रेस्टोरेंट. बहुत अच्छा लगा. एंड द गिफ्ट ऑफ कोर्स touched my heart. These I have mentioned all of this in the birthday series itself, तो आप लोग वो देख सकते हो. And as I every year complain, birthday series करने के बाद बहुत थकान होती है भाई, because that 10 days 21st May to 31st May I literally work so much because there's so much content. I'm shooting in the morning, I'm editing in the evening, and I'm uploading it at night. So that is like how my routine works. और इन सब के बीच में मुझे अपने लिए भी टाइम निकालना होता है, तो बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है वो, बट मज़ा आता है. तो आप ज़रूर देखना हो पूरे बर्थडे सीरीज़ में. मैंने अपना हर एक चीज़ कवर किया है, whether it is to start the day or the celebrations that we did, केक कटिंग एंड गिफ्ट वाला तो देखना ही. बहुत ही ज़्यादा क्यूट वीडियो है वो. और उसके अलावा मैंने बहुत सारे रील्स भी बनाए ट्रेंडिंग सॉन्ग्स पर. That was it. May ended and जून में मेरे ये स्टार्ट हो गए, कॉलेज स्टार्ट हो गए SYJC के. अभी जैसे कितना, अभी आई थिंक 1 हफ्ता हो गया गाइस. 1 हफ्ता 10 दिन हो गया आज से एग्जैक्टली. मुझे लग रहा था वेकेशन में थकान ज़्यादा होगी, बट नहीं यार. अभी तो मतलब जगलिंग करना पड़ रहा है. सुबह क्लास, फिर 6:30 बजे मैं 6 o'clock तक कॉलेज होता है. मैं 7:30 घर पहुंचती हूँ. टुडे आई केम अर्ली बिकॉज टुडे इज़ अ वीकेंड. अदरवाइज 7:30 आई रीच होम. मैं फिर आके होमवर्क करो, पढ़ो टेस्ट के लिए. इट हैज़ बीन सो हेक्टिक. ऑल्सो द वीक व्हेन माई कॉलेज स्टार्टेड वॉज द वीक व्हेन आई हैड एग्जाम्स इन माई क्लासेस. तो भाई जो मैनेज किया है मैंने, जो जगलिंग की है, बिकॉज कैन नॉट टेक हॉलीडे इमीडिएटली ना, जिस दिन शुरू हुआ उस दिन. बट फिर पढ़ने को टाइम भी नहीं मिलेगा. बहुत जगलिंग हो रही है. हो रही है, आई वुड से, नॉट जस्ट कि हो रही थी, बिकॉज आई एम स्टिल हियर, आई एम स्टिल स्टक. कैन यू बिलीव, मैंने सोचा था कि SYJC का फर्स्ट डे का एक मिनी ब्लॉग बनाऊंगी. दैट वाज द एंटायर प्लान, बिकॉज FYJC में नहीं हो पाया था ड्यू टू रीजंस यू ऑल विल नो. एंड इफ़ यू डोंट नो, चेक आउट लास्ट ईयर्स लाइव अपडेट वीडियो. तो मैं सोचा था कि SY का तो मैं बनाऊंगी. आई कुडंट. ऐसा नहीं कि मैं बिजी थी, मुझे याद ही नहीं आया. That evening when I came home, I had my dinner and I sat with my mom's phone scrolling on reels, and I'm like, I was going to shoot today and I forgot. Can you believe, वो लड़की जो दिन रात कैमरा के बारे में, शूटिंग के बारे में, एडिटिंग स्किल्स के बारे में, फीचर्स के बारे में, अपलोडिंग टाइमिंग के बारे में सिर्फ यही सोचती थी, वो भूल गई शूट करना. Somewhere in that moment it just clicked to me कि यार I'm not the same anymore. Like in just a few months I have changed so much कि मतलब शूट करना भूल गई मैं.
because it doesn't matter, मतलब वो शूट कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं था. I just wanted to do it personally for myself, but it hit to me कि हाँ यार मैं शूट करना भूल गई. So yeah, weird. And since then, that I have not been posting any content after that. This point that I said, right, could not shoot, that links me to my other point कि why I have been inconsistent on my channel is because of this reason. मैं इतना जगल करती रहती हूँ कि मुझे टाइम ही नहीं मिलता है कंटेंट शूट करने के लिए. Whereas like so much I want to do. There are so many songs currently trending. कितने सारे मेकअप रील्स बनाने हैं, ये करना है, वो करना है, बट नहीं हो पाता, सिर्फ नहीं हो पाता. पूरी सुबह क्लास में, पूरी दोपहर कॉलेज में, पूरी शाम होमवर्क में. भाई बचता क्या है मेरे पास? प्रॉबली 9 o'clock to 11 o'clock 2 घंटा मेरे पास बच जाता है. वो भी अगर अगले दिन एग्ज़ाम रहा, टेस्ट रहा, तो मुझे रात को पढ़ना होता है. आई डू माई वॉकिंग. नो टाइम, एब्सोल्युटली नो टाइम. मुझे समझ में भी नहीं आता दिन कैसे जा रहा है, बस इट इज़ जस्ट गोइंग. ये वीडियो भी मैंने बड़े मुश्किल से यहाँ वहाँ से टाइम चुरा के प्रीवियस डे एक्स्ट्रा काम करके, और कल एक्स्ट्रा काम करूँगी मैं, वो सब एडजस्टमेंट बनाने के बाद आज का शाम मैंने फ्री किया है फॉर दिस वीडियो, बिकॉज दिस वीडियो हैड टू गो समहाउ इन एनी केस. तो मैंने वो रेडी किया, दैट्स इट. बट यहाँ नहीं हो रहा है यार, बस दैट्स द सोल रीज़न. नहीं हो रहा है मेरे से. आई विल ट्राई फेस्टिवल्स के टाइम पे या किसी इंपॉर्टेंट इवेंट के टाइम पे शूट करना, अदरवाइज नहीं होगा. इट्स इम्पॉसिबल. और शूट करना ना फिर भी ईजी है, ठीक है. मैं बैठ गई, मैंने शूट कर लिया, ख़त्म. ज़्यादा से ज़्यादा कितना, आधा घंटा जाता है, दैट्स इट, आई एम डन. बट द मेन टास्क इज एडिटिंग. इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. एंड इतना टाइम अगर कोई चीज़ मेरा कंज्यूम करेगा तो मुझे बाकी चीज़ों के लिए वक्त नहीं मिलेगा, दैट इज़ फॉर श्योर. नॉट पॉसिबल. वेरी अपसेट, लाइक आई एम जस्ट सो अपसेट. मुझे इतना पसंद है शूट वूट करना, बट नहीं हो पा रहा है. होपफुली होगा, मुझे नहीं लगता होगा. But yeah, that brings me to my last point for the day. Is I have covered all of this, and my last point obviously for today is how am I feeling right now. I am feeling good. Okay, I won't say कि यार अच्छा नहीं लग रहा है, बेकार सा लग रहा है. अच्छा लग रहा है, बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं लग रहा, ऑर्डिनरी लग रहा है मुझे बस. I am trying to show up every single day. Like that is my mood. दिन के एक वक्त में मेरे में बहुत मोटिवेशन रहती है, दूसरे वक्त में मैं थोड़ी थक जाती हूँ, तीसरे वक्त में आई रिमाइंड माई सेल्फ दैट नो दिस इज़ वॉट आई हैव चोजन, दिस इज़ वॉट आई हैव टू डू. और चौथे पल आई माइट जस्ट स्टार्ट क्राइंग. आई डोंट नो, बिकॉज आई एम ए जेमिनाई. जेमिनाइज आर नोन फॉर देयर मूड स्विंग्स, एंड मेरे साथ तो बहुत होता है. कभी मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील होता है, कभी बहुत लो फील होता है. So overall I would just say that I am doing fairly good. I am trying to adjust. I am trying to put my likes, dislikes aside and show up every single day for anything and everything. कोशिश कर रही हूँ कि हर वो चीज़ जो मैं अचीव करना चाहती हूँ वो अचीव हो जाए, वो भी अच्छे से हो. उसके अलावा मज़ेदार भी हो रहा है, बहुत कुछ मस्ती वस्ती चलता रहता है. अभी कॉलेज स्टार्ट हो गया है, आई मीट माई फ्रेंड्स, उनके साथ बातें करती हूँ, अच्छा लगता है मुझे. 2 महीने से मैं सिर्फ अपनी शक्ल देख रही थी. एंड बट हाँ यार, बहुत पढ़ाई हो रही है, लाइक बहुत ज़्यादा पढ़ाई हो रही है. इतनी पढ़ाई हो रही है कि जितना मैंने 2 साल में नहीं किया उतना 2 महीने में पढ़ाई हो गई है. आई एम ट्राइंग टू कोप अप विद इट. आई एम स्टिल लर्निंग. यार ये पढ़ाई लर्न करने से ज़्यादा मुझे लगता है रूटीन लर्न करना इज़ द फर्स्ट स्टेप फॉर एनी पर्सन एट दिस एज हु इज़ परस्यूइंग their board exam plus degree. I mean, who's giving their board exam and plus pursuing a degree. So I'm trying to learn, I'm trying to adjust myself, and hopefully it will be good. I don't know how it's going to be in the coming days. I can just see my days being even more hectic because college is going to start in even more full swing. क्लासेस में भी टेस्ट भी भर भर के होने वाले हैं, और मतलब बहुत कुछ होने वाला है अभी आने वाले दिनों में. एंड नॉट समथिंग दैट आई हैव टू बी एक्साइटेड अबाउट, बट समथिंग दैट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, बिकॉज आई डोंट वांट टू हैव दैट स्कार दैट हैपेंड इन द लास्ट April month of 2025, where I was not doing anything as such, but things were changing so badly, so I don't want to have that scar. But also when I talk about my current mood, I am really tired in terms of vacation.
मुझे कोई छुट्टी नहीं मिली है सिंस फेब्रुआरी। फेब में मैं गई थी श्रीलंका, दैट इज़ इट। उसके बाद एक भी मुझे ब्रेक नहीं मिला है एंड आई जेन्युइनली वांट अ ब्रेक बिकॉज नहीं हो रहा है। मतलब वो जो अप्रैल में हुआ ना, उससे मुझे बहुत थका दिया, जिसकी वजह से आई एम वेरी 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 टायर्ड एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू अ ब्रेक। अभी क्या है, पढ़ाई बहुत है पर उतनी नहीं है जितने आने वाले दिनों में होगी। तो समहाउ जस्ट लाइक कहीं जाना है, दैट इज़ बिकम माई क्राइम की मूड कि कभी भी इफ़ आई फील लो आई जस्ट थिंक ऑफ वन थिंग कि यार मेरे को कहीं जाना है, बिकॉज एवरी सिंगल पर्सन आउट देयर इज गोइंग समवेयर और द अदर। आई वॉच सो मेनी वीडियोज ऑफ पीपल, हम यहाँ जा रहे हैं, हम वहाँ जा रहे हैं, लाइक मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। आई एम जस्ट स्टक डूइंग टू थिंग्स, क्लासेस कॉलेज। मतलब मैं वो मशीन की तरह हो गई हूँ जो पूरा दिन बस आउटपुट देता रहता है। तो उस तरीके से बोलो तो मैं थक गई हूँ। बट anyways, that was all for this life update. I hope you guys enjoyed watching. This is the makeup look that I have created. Very easy, very simple. You can do this when you all go to college. मैं बहुत बार करती हूँ। ऐसा न्यूडिश पिंकिश लिपस्टिक है ये नायका की, और उसके बाद सटल आई मेकअप है। चेहरा एकदम फ्रेश लगेगा आपका। You don't need foundation. You can wear it up in the monsoon season and it is just perfect for your long travels or somewhere where you want to look simple but put up the glam. And that is it for this video. I hope you guys enjoyed watching. This was all that I wanted to speak about. This is all that has happened in the past 6 months. Too much good, too much bad, a balance of everything, and now I am not very excited, but as I said, looking forward to the other half of 2025. Festivals are going to begin and so much is going to happen. Even start होने वाले मेरे कॉलेज में, और बर्थडे आ रहा है डैड का, वो भी है। तो हाँ, बहुत कुछ होने वाला है। आई विल सी गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो वेन एवर पॉसिबल। आई हैव नो क्लू कि कब दूसरा वीडियो आएगा भी, क्योंकि मुझे ही नहीं पता, मेरे को शूट ही करने का टाइम नहीं मिलता है। बट वेन एवर पॉसिबल आई विल सी यॉल। फिलहाल आज का वीडियो, आज का लाइफ अपडेट, मेरा ये बड़ चिट चैट अच्छा लगा हो तो लाइक करना एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल दीवा डायरीज, एंड मिस यू गाइज रियली सून इन अपकमिंग वीडियोज। Until then, take care and bye.